A very warm good evening to one and all. Welcome back to the today's session, Ayush Vignan Sammelan series. Thank you all for your overwhelming response. And today we welcome Dr. Pranav Shah sir, BHMS, MD, PhD, Assistant Professor from Department of Homeopathy Pharmacy and GHMC Detali, Gujarat. And we welcome you, sir. We welcome you all the participants for the today's session. So today, sir will be taking the topic doing right, doing better, the role of ethics and research in homeopathy practice. We welcome you, sir. We welcome all the participants. So let us have a small introduction regarding sir. मेरे फोन का असर है। So, sir did BHMS from AJ Selva Homeopathic Medical College and Research, MD Homeopathy Pharmacy from SKH Medical College and Hospital, Bid, Maharashtra, and PhD from Swami Vivekananda Homeopathy Medical College and Hospital, Bhavnagar, Gujarat. And sir is also having a working experience of 14 years. And sir has also been an examiner for UG, PG, PhD as well as guide. Sir has also written books and contributed, sir, as a contributor for the writing the chapters, book chapters. And sir has been awarded with APJ Abdul Kalam Award for oral presentation in vitro evaluation of antimicrobial activity of pyrogenum in international conference of IABS at ISKCON Club, Bhavnagar in the month of January 2017. And sir has been also a journal chief editor of peer review publication journal IJR, NJRM. And sir has also as well as published many articles in the same journal also as well as the editor in chief. So glad to be on the board, sir. And as well as sir also presented many papers also in many conferences, seminars also. So we'd be glad, sir, to be on the board. Thank you, everyone, and thank you, sir. Session is all yours. Okay. Thank you, Aisha, to give me opportunity to present the online webinar on doing the right, doing better, the role of ethics and research in homeopathic practice. तो सबसे पहले why I choose this topic, because of this topic was chosen. Every homeopathic students, faculties, and physician must learn how to practice in the right way from the beginning. Ethics teach us how to behave as a responsible future doctor, how to treat the patient honestly and respectfully and safely. And research help us understand what works, why it works, and how we can improve the treatment. And these three things: what works, why it works, and how we can improve the treatment. The three steps, if I understand, then the increase our patient flow, increase our efficacy of homeopathy in compared to other fields with evidence-based practice. Then specific learning object of these topics. First is understand the core ethical responsibility of a homeopathic practitioner. Second, identify the NCH based rules and regulation and professional conduct norms. Third, apply ethical decision making in everyday clinical scenarios. Fourth, explain the importance of research in strengthening evidence based homeopathy. Distinguish between the ethical and unethical research practice. And last, encourage the culture of the professionalism, integrity, and the scientific things. These all the specific learning object of my topic. Now, first, introduction of the topic. Ethics and research are the
foundation of safe, trustworthy, and scientific homeopathic practice. Today's healthcare systems, homeopathic practitioners are expected not only to treat the patient but also follow the professional standards and respect patient right and contribution to scientific knowledge. क्यों रिस्पेक्ट द पेशेंट राइट? बिकॉज ऑफ देखिए कि मेरे पास अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है, ठीक है, तो ऑलरेडी पेशेंट सब कुछ ढूंढ के ही हमारे पास आता है, लास्ट में होम्योपैथिक के पास आता है, ठीक है, वो एलोपैथिक भी ले चुका रहता है, आयुर्वेदिक भी ले चुका रहता है, बहुत सारी ट्रीटमेंट अपने घर पे भी कर लेता है, और उसके बाद में अगर कोई स्कोप नहीं है तो होम्योपैथिक के फील्ड में आता है कि भाई चलो अभी लास्ट में कोई बोला है या फिर यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम कहीं पे सुना हुआ है कि चलो होम्योपैथिक से ये डिजीज ये कंप्लेन अच्छी हो जाएगी, तो इसीलिए हमें रिस्पेक्ट पेशेंट राइट्स एंड कंट्रीब्यूट टू साइंटिफिक नॉलेज। पेशेंट के पास सब नॉलेज है ही, कई बार ऐसा होता है कि हमारे से भी ज्यादा नॉलेज आ जाता है, पूछते हैं कि इसमें तो ये मेडिसिन देना है, ये मेडिसिन के अंदर ये है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने मेरे एक पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, ठीक है, इमरजेंसी था, तो मैंने बोल दिया कि नजदीक के होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आप आर्सेनिक एल्बम 30 लेके आ जाओ। उसके बाद अगर वो पढ़ा हुआ इंसान है, उसने डाल दिया डायरेक्ट। अगर नहीं पढ़ा हुआ इंसान तो फिर वो डायरेक्ट वो स्पेलिंग डाल देता है गूगल पे और सब आर्सेनिक एल्बम से सभी चीजें देख लेता है। फिर बाद में फोन आता है कि सर आर्सेनिक एल्बम के अंदर तो ये चीज दिखा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा सही बात है, लेकिन आपको अभी मैं बुक का नाम देता हूँ, ठीक है, उन गूगल में से वो बुक आप डाउनलोड कर लो और आपके फैमिली के अंदर आपके पापा को जो तकलीफ है वो तकलीफ वो मेडिसिन के अंदर दी गई है, सेम टू सेम तकलीफ, एक भी चीज इधर से उधर नहीं है, सेंटेंस टू सेंटेंस आपने जो मेरे को बोला वो। तो उन्होंने क्या किया, फिर बोरिंग डाउनलोड किया, आरसीआर निकाली, इंट्रोडक्शन पढ़ा और मोडालिटी पढ़ी, उन्होंने जो बोला था। उसके बाद उनको ऐसा लगा कि हाँ, सर ने जो मेडिसिन दिया है वो परफेक्ट दिया है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद उन्होंने मेडिसिन देना चालू किया। इसलिए रिस्पेक्ट द पेशेंट राइट, उनको मालूम होना चाहिए कि हम पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं और कौन से बेस पे दे रहे हैं। तो क्या हुआ, उसने ट्रस्ट हुआ और उसने मेडिसिन स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिस्पेक्ट द पेशेंट राइट भी किया और साथ में साइंटिफिक नॉलेज भी दे दिया उसको कि हमारी मेडिसिन जो आर्सेनिक एल्बम है वो आपके पापा के अंदर ये तकलीफ है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, इफेक्ट आएगी, ठीक है। उसके साथ साथ इथिकल बिहेवियर बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन द डॉक्टर एंड पेशेंट। तो यहाँ पे मैंने ये भी कर लिया, ट्रस्ट भी गेन कर लिया और पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशन भी बढ़ गए, ठीक है। While the research help us understand the true effectiveness of the remedy and improve of the clinical decision। कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ मेडिसिन भी बहुत सारी है। तो अगर हमारे पास रिसर्च है अच्छा और वो भी इथिकल रिसर्च है, तो ठीक है, हमको पता चल जाए कि नहीं हमारे अंदर ये मेडिसिन आ रही है ये डिसीज के अंदर, तो अगर इसके अंदर रिसर्च हुआ हुआ है वो भी इथिकल है तो हम ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। तो क्या होगा, इम्प्रूवमेंट भी होगा हमारे क्लिनिकल डिसीजन के अंदर और हमारी इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिसिन भी पता चल जाएगी। For the student and young generation practitioner, learning ethics early create the strong habit and prevent the malpractice। ठीक है, अभी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट आ गया तो अभी दिक्कत हो रही है सभी, तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे जो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं। तो उसको अभी से पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या प्रैक्टिस करनी है और आगे जाके सिनेरियो क्या होने वाला। बहुत सारे स्टेट के अंदर ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन आ गया है कि अभी होम्योपैथिक वाले होम्योपैथिक ही प्रैक्टिस करेंगे, एलोपैथिक या आयुर्वेदिक के और कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, अगर एथिक्स हमने पढ़ लिए, हमको क्या क्या ध्यान रखना है तो हमारे में से वो इम्पोर्टेंस है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च ऑल्सो प्रिपेयर देम फॉर द फ्यूचर एकेडमिक ग्रोथ, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड रिस्पॉन्सिबल क्लिनिकल वर्क। देखो, अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च ऑल्सो प्रिपेयर देम फॉर द फ्यूचर एकेडमिक ग्रोथ।
अगर कोई भी स्टूडेंट या यंग प्रैक्टिशनर आगे जाके एमडी करके वो टीचिंग में जा रहा है तो उसका एकेडमिक ग्रोथ हो जाएगा। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड रिस्पॉन्सिबल क्लिनिकल वर्क के अंदर भी हमको इंडिविजुअल, अगर हमारी क्लिनिक है तो हमारे क्लिनिक के अंदर भी हमको साथ साथ में रिसर्च करते जाना है। ऐसा नहीं कि अकेली प्रैक्टिस ही करनी है। आपके पास बहुत सारे केस एक ही डिजीज के हैं तो उसके अंदर आप फ्यूचर के अंदर देख सकते हो कि मेरे अंदर, मेरे क्लिनिक के अंदर इतने सारे पेशेंट है तो मैंने अभी तक लास्ट 10 दिन के अंदर कौन से पेशेंट सबसे ज्यादा आया, कौन सी एज के आए, मेल आए या फीमेल आए, उसके अंदर मैंने कौन कौन सी मेडिसिन दिया है, कौन सी पोटेंसी दिया हुआ है, कितनी बार रिपीटेशन किया हुआ है। तो क्या होगा, तो रिसर्च पेपर भी आपका स्टार्ट में ग्रो होगा और वो आप पब्लिश भी कर सकते हो कहीं पे भी, होम्योपैथिक जर्नल के अंदर पब्लिश कर सकते हो, सीसीआरएच की वेबसाइट के ऊपर, एनसीएच की वेबसाइट के भी आप अंदर भेज सकते हो। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों का जो नॉलेज है वो बाकी होम्योपैथ के पास भी जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या देख लिया है भाई, हमको क्यों करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, साथ में इथिक्स एंड रिसर्च एम्पावर द होम्योपैथ टू प्रैक्टिस इंटीग्रिटी कॉन्फिडेंस एंड साइंटिफिक क्लियरिटी। यहाँ पे यूज किया है इंटीग्रिटी। क्यों इंटीग्रिटी किया हुआ है कि कई बार क्या होता है, कैंसर है जो इरिवर्सिबल केसेस है, वहां पे हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, एलोपैथिक भी देना है, होम्योपैथिक भी देना है, जरूर पड़े तुम तो योगा भी देना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एलोपैथिक मेडिसिन छूट जाती है, अदर सिस्टम की मेडिसिन छूट जाती है, होम्योपैथिक और योगा या प्राणायाम या फिर यूनानी वो मिलके, दो मिलके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए हमको इंटीग्रेटेड करना ही है और एनसीएच ने अभी इंटीग्रेटेड वर्क भी दिया हुआ है। एलोपैथिक वाले भी, एमबीबीएस आयुर्वेदिक वाले भी होम्योपैथिक पढ़ रहे हैं और हम भी सभी चीजें फाउंडेशन कोर्स के अंदर सभी चीजें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारी अपनी भी कई बार क्या होता है, लिमिटेशन रहती है। सभी पैथी की अपनी अपनी लिमिटेशन है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% नहीं हम तो ये कर ही देंगे, ऐसा नहीं। कहीं पे क्या होता है कि हमें लिमिटेशन आ जाती है तो हमको दूसरी सिस्टम का भी हमको सपोर्ट लेना पड़ता है। इसीलिए एंश्योर दैट द डू राइट टुडे डू बेटर फॉर द फ्यूचर्स। अगर हमने अभी से ही, पहले दिन से ही अच्छी तरह हमने कर दिया सभी चीजें, तो आगे जाके बहुत फ्यूचर हमारा ब्राइट सी है और रहने वाला भी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द कोर ऑफ इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। अगर हम अभी स्टूडेंट है या फिर होम्योपैथ है या फिर कोई प्रैक्टिशनर है या फिर कोई टीचर है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो प्रूव सेफ, honest and patient centered care। सेफ, ठीक है, जैसे हमने हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर, ठीक है, सेकंड एफोरिज्म है रिस्टोर टू हेल्थ द फिजिशियंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनेस्ट भी है, सेफ भी है एंड पेशेंट सेंट्रिक केयर। पेशेंट को हमको अच्छा करना है। ठीक है, नो डाउट मेरी चीज भी हमको देखना ही है कि अकेला कौन करेगा, पेशेंट केयर करेगा, सभी लोग करेंगे। साथ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसके साथ क्या जॉइंट होगा, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंश्योर दैट एवरी डिसीजन मेड इन द प्रैक्टिस प्रोटेक्ट द पेशेंट वेलबींग एंड अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन। ठीक है, अभी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया। कहीं होम्योपैथिक ऐसा बोल देते, नहीं हम होम्योपैथ को भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते, एक होम्योपैथ दूसरे होम्योपैथ को भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते। क्यों नहीं देना है भाई, बिंदास आप दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सामने वाले को भी पता चलेगा कि अगर होम्योपैथिक डॉक्टर दूसरे होम्योपैथिक को भी मेडिसिन बताएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार एक होम्योपैथ दूसरे होम्योपैथ से बड़ा ही है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है हमारी मेडिसिन राइट है लेकिन मेरा जो रिपीटेशन है और पोटेंसी है वो अगर सही नहीं है, ठीक है, तो पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, कहीं वही मेडिसिन दूसरा फिजिशियन
फिजिशियन देगा नहीं, उसके अंदर भी आर्सेनिक एल्बम आ रही है, मेरी भी आर्सेनिक एल्बम आ रही है, लेकिन मैंने 30 में दिया है, रिपीटेशन भी किया है, सब किया है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जो दूसरा होम्योपैथ है उसने भी आर्सेनिक प्रिस्क्राइब किया, लेकिन उसकी पोटेंसी उन्होंने बढ़ा दिया, डायरेक्ट 1 mg कर दिया और रिपीटेशन कर दिया, और उसको रिस्पॉन्स मिलने लगा पेशेंट का अच्छा, तो होम्योपैथी बेस्ट हो गई, नो डाउट। ये होम्योपैथ और दूसरे होम्योपैथ के अंदर कई बार यही दिक्कत होती है, अगर मैंने प्रिस्क्राइब कर दिया साम गलत निकला तो ऐसा मत सोचो, ठीक है। एक होम्योपैथ दूसरे होम्योपैथ से क्या होता है, आप एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे तो हमारी मिस्टेक भी पता चल जाएगी और हमारा प्रोफेशन भी बढ़ सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है वो होम्योपैथ ऐसा कि मैं आपके पास वापिस पेशेंट भेज रहा हूँ, आप फिर से ये पोटेंसी से चालू करना, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे वापिस बात कर लेना। तो उसमें क्या, डॉक्टर और डॉक्टर के बीच में और डॉक्टर और पेशेंट के बीच में सही बाउंडिंग होगा, ठीक है। तो होम्योपैथिक प्रोफेशन और होम्योपैथिक डिग्निटी, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंस है। इसी वजह से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, ठीक है। तो पहली रिस्पॉन्स, मेंटेन द पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स पेशेंट के अंदर सभी चीजें ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल के हिसाब के, एक ही घर के सभी पेशेंट आए हुए, ससुर भी है, सास भी है, ननंद भी है, सब है, तो हमको एक दूसरे की चीजें नहीं बोलनी है, सभी को पता ही है। तो फिर भी मैं सही फिर से बोल रहा हूँ, मेंटेन द पेशेंट कॉन्फिडेंस, इसके सिवा और कहाँ कहाँ पे आ रही है, पेशेंट का नाम है, ठीक है। पेशेंट का अगर हम फोटो ले रहे हैं तो फोटो के अंदर फोटो आइडेंटिफी भी हमको क्या करना है, आंखों के ऊपर ब्लैक कलर की पट्टी लगा देनी है, ठीक है। जो भाग है उतना ही बताना है, जहाँ पे हम बता रहे हैं फेस है तो आंख के ऊपर पट्टी लगा दिया है। अगर रिपोर्ट हम शो कर रहे हैं तो रिपोर्ट के भी अंदर क्या रहेगा, हमको उसका नाम हाइड कर देना, कहाँ से वो सब हाइड करना है, वो मेरे कॉन्फिडेंशियलिटी आएगा, ठीक है। दूसरा है प्रोवाइड द होनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। होनेस्ट मैंने पहले भी बताया, मैंने एग्जाम्पल भी दिया आर्सेनिक एल्बम का, मेरा खुद का एग्जाम्पल था। अगर पेशेंट को आपने बता दिया आज आप मेडिसिन ले रहे हो, इसके बाद ये चेंजेस आपके अंदर आएगा, और ये चेंजेस आए तब आपको मुझे दिखाने आना है, अगर कोई डाउट है तो आपको मुझे पूछ लेना है, ठीक है। तो क्या किया हमने, ऑनेस्ट भी बता दिया, वो बोले कि मेडिसिन बता सकते हो, बता सकते हो, ऑनेस्टली बता दिया, ये मेडिसिन से क्या होगा, तो ये स्टेप होंगे। तो ट्रांसपेरेंसी रखने से क्या होगा का हमेरा और पेशेंट का ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो और दूसरा क्या रहेगा, आधी चीज उसको वहां पे ही हो जाएगा, ठीक है। अभी पेशेंट सर भी अच्छे, सर ने सब कुछ सुन लिया है, ठीक है, चलो अच्छा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग केस टेकिंग के अंदर इतनी सारी देर लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे फिजिशियन भी, पेशेंट आता है और उनको पता चल जाता है कि ये मेडिसिन देना है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक वो भी धीरे धीरे आएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारे में भी क्या होगा, नॉलेज बढ़ता जाएगा, तो वैसे आगे जाके हम भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म इसलिए लेना है कि आगे जाके आप कहीं पे भी वो पेशेंट का फोटो दिखाना है, उसकी रिपोर्ट दिखाना है, ऐसे वेबिनार चल रहा है, अगर आपको आपके पास बहुत सारे एक ही डिजीज के पेशेंट है और वो उसमें आप माहिर हो गए, ठीक है, किसी का आरए के अंदर आरएस जितने भी पॉजिटिव है तो वो बोलते थे आरए के पेशेंट मेरे पास ले आओ, मैं नेगेटिव करके दूंगा, होम्योपैथिक पेशेंट, होम्योपैथिक डॉक्टर, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी देता है, एंटीमाइस्मेटिक भी देगा, रिपीटेशन भी करेगा, मदर टिंचर जरूरत लगे तो मदर टिंचर भी देगा, ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि हमने में उसके आरए जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव किया, उसका बिफोर और आफ्टर का रिपोर्ट लगेगा हमको, ठीक है। उसका नाम भी हमने हाइड कर दिया, उसका रिपोर्ट भी दिखा दिया, तो उसके लिए हमको इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म लेना ही है, ठीक है। प्रैक्टिस विद इन द लीगल एंड प्रोफेशनल बाउंड्रीज, विद इन लीगल एंड प्रोफेशनल बाउंड्री। एग्जाम्पल के हिसाब से पेशेंट आया, फ्रैक्चर है उनको, ठीक है, दोनों ह्यूमरस ब्रेक हुए थे,
ठीक है, नहीं तो उसको पहले हमको सपोर्टिव थेरेपी देना ही पड़ेगा कि भाई चलो फ्रैक्चर है, नो डाउट, तो पहले उसका अगर ऑपरेट कराना है तो हमको कंपलसरी ऑपरेट करना ही है। ठीक है, अगर ऑपरेट नहीं किया और बोल दिया कि नहीं हो जाएगा तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे हमको लीगल और हमारी बाउंड्री पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, किसी को किडनी स्टोन है, 30 mm का किडनी स्टोन है और स्टैगोन है, स्टोन है, अगर छोटा है तो कहीं पर निकल भी सकता है, और 30 mm का है और स्टैगोन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हम उसको ब्रेक कर देंगे और बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, 30 mm का है और स्टैगोन है, स्टोन है, तो क्या निकल पाएगा कि नहीं? हाँ निकल पा कर सकता है, लेकिन साइज उसकी छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें विद इन द लीगल एंड प्रोफेशनल बाउंड्री, वो दोनों हमको देखना है। दूसरा है प्रोवाइड द कंपोनेंट एंड एविडेंस बेस्ड केयर। कोई पेशेंट आके बोलता है कि सर क्या आपने ये डिसीज के अंदर पहले कभी रिजल्ट लिया है क्या? 10 mm का स्टोन था, वो निकाल दिया, मैंने बोल दिया, लेकिन उसका एविडेंस है क्या आपके पास? यहाँ है ना, मैं आपको पेशेंट का नंबर देता हूँ, आप बात कर लीजिए। ठीक है, आप फोन कर सकते हो। हाँ, लेकिन कहाँ पे था, कौन सी जगह पे था, कौन कौन सी मेडिसिन दिया था, उसके बाद वो स्टोन निकाला है। प्रोवाइडिंग कंपोनेंट एंड एविडेंस बेस्ड केयर, मैंने एविडेंस भी दे दिया, कहाँ कहाँ पे हुआ था, कैसे भी हुआ था, वो भी हो गया, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ रहा है। अवॉइड द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, वो सेंटेंस ही बोलता है कि क्या क्या हमको करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेंटेन द एक्यूरेट मेडिकल रिकॉर्ड, ये सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन चीज है। मेंटेन द एक्यूरेट मेडिकल रिकॉर्ड, अगर हमने क्लिनिकल एस्टेब्लिश एक्ट के अंदर हमको ये मेंटेन करना मैंडेटरी है। उसके बुक बनानी है हम लोगों को, उसके अंदर लिखना है सीरियल नंबर, कौन सी तारीख को पेशेंट आया था, कौन से नाम है, उसका एड्रेस, एज, सेक्स, डायग्नोसिस और कौन सी मेडिसिन दिया था। ठीक है, जब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर ये आपको रजिस्टर बनाना कंपलसरी है। आपको जो इन्वेस्टिगेशन करने के जो इंस्पेक्टर आएंगे उसको सभी केस रिकॉर्ड नहीं मांगेंगे, वो लोग ओनली एक ही चीज मांगेंगे, आपका रजिस्टर बताओ, आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो कि नहीं करते। ठीक है, तो मेंटेनिंग द एक्यूरेट मेडिकल रिकॉर्ड इसलिए भी लगेगा कि अगर आगे जाके लीगल कोई भी इंक्वायरी आई तो उसके अंदर भी वो लगेगा। देख ले, हम सेफ हो गए, अगर मैंने अपना मेंटेन द रिकॉर्ड रखा हुआ है तो मैं सेफ हो गया। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे तो मिनिमम 3 to 5 years का रिकॉर्ड आपको रखना कंपलसरी है, और क्लिनिक के अंदर भी आपको मिनिमम 10 साल का या 5 साल का रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। रिस्पेक्ट द ऑल द पेशेंट विथ एम्पथी। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, नहीं नहीं आप ऐसा तो नहीं करोगे। ठीक है, उसको सुनना है, उसको एम्पैथी करना है, वो ध्यान रखना है। एंश्योर द सेफ डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन। हमारी सबसे ज्यादा गलती यहाँ पे बहुत बार हो जाती है। ठीक है, तो हमको पहले हमारे जो फार्मासिस्ट अगर आपने रखा हुआ है तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई एलियम सेपा और एलियम सताइवा दोनों अलग अलग है। अगर मैंने कई बार लिखने में गलती कर दिया, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो मुझे आके पूछ लेना है। ठीक है, तो एलियम सेपा लिखा है या एलियम सताइवा लिखा है। ठीक है, तो ये चीज सबसे ज्यादा है। और कैसे अगर नहीं है पोटेंसी तो वो बोल दे क्या सर ये पोटेंसी अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से कौन सी पोटेंसी देना है या फिर कल बुलाना है। कई बार क्या होता है, होम्योपैथिक में भी ऐसा होता है
कि बाहर से हमने लिख दिया तो अपने हिसाब से वो बोल देते नहीं नहीं 30 नहीं, आप 200 ले लो, 200 से बेहतरीन रिजल्ट आएगा। अरे भाई फिजिशियन ने लिखा हुआ है तो भाई उसके हिसाब से दो ना। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। एक जगह पे मैंने पल्सिटिला 200 मेडिसिन दिया था, उसके घर में भी होम्योपैथिक डॉक्टर था। ठीक है, तो दूसरे होम्योपैथ के पास गए तो उन्होंने बोला कि पल्सिटिला आपको लेने के लिए बोला। हाँ, देखिए ये तो बच्चों की दवाई है, आपको क्यों दिया है? अरे भाई आपने केस नहीं लिया है, आपको पता नहीं है ये पल्सिटिला क्यों दिया हुआ है, तो जो होम्योपैथ के रिलेटिव है उसको मत बोलो ना भाई कि ये बच्चों की दवाई है, आपके लिए वो बच्चों की दवाई है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है एंश्योर द सेफ डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ऐसे ऐसे आपके पास सभी इन्वेस्टिगेशन आते रहेंगे। ऑलवेज मेंटेन द प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है, प्रोफेशनल बिहेवियर आपको जब डिसिप्लिन के साथ आएगा। ठीक है, बिहेवियर कैसे करना है आपको, कब करना है। ठीक है, तो ये भी हमारी ये 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सीख गए तो हमारी क्लिनिक चल पड़ी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है मेरी। तो सेकंड पॉइंट है अप्लाई एथिकल डिसीजन मेकिंग इन एवरीडे क्लिनिकल सिनारियोस। Ethical decision making means choosing the action that are right, safe, lawful and patient centered in all daily situation। पहले भी मैंने बोला राइट है, सेफ है, लॉफुल है एंड पेशेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। In homeopathic patient, many clinical decisions require the moral judgment, sensitivity and the professionalism। कई बार पेशेंट आता है हमारे पास बहुत सारी चीजें अपनी अंदर की फीलिंग बताता है, जहाँ पे सीरियसनेस है अगर वहां पे आप हंसोगे एज ए फिजिशियन, आप हंसोगे तो क्या इंप्रेशन रहेगी आपकी? अगर वो सेंसिटिविटी की बात कर रहा है, सेंसिटिव पॉइंट की बात कर रहा है, उस वो पेशेंट के लाइफ का बहुत सेंसिटिव पार्ट है, वो उसके ऊपर आपने पिंच कर दिया और वो बोल रहा है। ठीक है, और उसने हंसने की बात नहीं थी लेकिन आपको हंसी आ गई, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग थी लेकिन फिजिशियन को हंसी आ गई तो क्या होगा? ठीक है, अगर पल्सेटेला वाला पेशेंट आया और आपने उसको जोर जोर से बोल दिया आपको ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, मुझे पूछने आना था, आप दूसरे को उसमें कैसे बोल दिया। ठीक है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे सेंसिटिविटी एंड प्रोफेशनलिज्म दोनों कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये इथिकल अप्लाई इथिकल डिसीजन है। ठीक है, कई बार उसमें केस भी हो सकता है मेरे साथ सर ने ऐसे बात किया, मेरा मान सम्मान नहीं रखा। ठीक है, बाहर जाके वो 10 लोगों को बोलेगा। ठीक है, a practitioner must think ethically at every step from the case taking to medicine selection and the communication। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर एब्रॉड के अंदर आपने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, क्यों किया, कैसे रिपीटेशन करना है और कितनी ग्लोब्यूल्स लेना, वहां तक का आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अगर आपने तभी इथिकली नहीं बताया कोई भी चीज तो वहां की गवर्नमेंट या वहां पर जो व्यक्ति है वो मेडिसिन लेने के लिए इनकार कर सकता है। ठीक है, तो उसको माइंड में उतरना चाहिए कि मुझे ये मेडिसिन सिलेक्ट किया है, ये बेस पे किया है, ये पोटेंसी आ रही है, वो सब आपको बताना पड़ेगा। क्यों? सेफ एंड राइट। सेफ कौन हो गया? फिजिशियन भी सेफ हो गए कि नहीं मैंने आपको ये चीज बताया था, आपने हाँ बोला था, इसलिए आपको मेडिसिन ये दिया हुआ है। दूसरा कि हमने कंसेंट फॉर्म दे दिया था। ठीक है, हाँ मुझे ये सब चीज बताई गई है और इसकी जिम्मेदारी मैं खुद रहूंगा। ठीक है, तो क्या हो गया? राइट भी हो गया, सेफ भी हो गया, लॉफुल भी हो और पेशेंट सेंट्रिक भी हो गया। ठीक है, तो ये
थिंकिंग करना है केस टेकिंग टू मेडिसिन सिलेक्शन एंड कम्युनिकेशन के अंदर। ड्यूरिंग केस टेकिंग क्या क्या करना है? A patient reveals the sensitive personal information, your mental health, sexual history, or family conflicts. This protect the patient dignity and ensure the ethical data handling. ये चीज में खास ध्यान रखना है। एग्जाम्पल दे दो, अभी मैरिज की सीजन चालू है, ठीक है। अगर कई बार क्या होता है, लड़के लड़कियां बोलते हैं कि मेरी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू है, मैं ये डॉक्टर से ले रहा हूँ अथवा ले रही हूँ, तो कई बार क्या करते हैं कि वो बंदा या फिर उसके रिलेटिव या उसके पेरेंट्स होम्योपैथ फिजिशियन के पास आता है और बताता है कि मुझे ये लड़के या लड़की का नाम है, ये उसकी उम्र है, ये उसका पापा है, ये आपसे मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तो मुझे उसकी हिस्ट्री पढ़नी है या फिर उसकी हिस्ट्री में क्या क्या है, क्योंकि मुझे मैरिज करना है इसलिए। ठीक है, तो पहला क्या रहेगा मेरा इथिकल के हिसाब से? नहीं, ये क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों नहीं देख सकते? ये कॉन्फिडेंशियलिटी है, यह मेरे इथिक में है। जब तक जो पर्सन का आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो मुझे लिखित में देगा आपके नाम के साथ, और वो यहाँ आने के बाद रूबरू फेस टू फेस मेरे को बोलेगा, तो ही मैं आपको दूंगा, वरना नहीं। ये हो गया इथिकल पार्ट एंड कॉन्फिडेंस। सिलेक्टिंग द मेडिसिन सेकंड, मल्टीपल रेमेडी सीम्स एप्लीकेबल बट द प्रैक्टिशनर इज अनश्योर, डिमांड्स साइंटिफिक रीजन एंड नॉट गेस वर्क। फिर मैं दो मेडिसिन दे रहा हूँ पेशेंट को, या फिर दो मदर टिंचर में दे रहा हूँ, तो उसको क्या देना है? साइंटिफिक रीजन देना पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में मैंने रीजन बताया आर्सेनिक एल्बम का, मैंने क्यों दिया है, आप मैंने साइंटिफिक बोला। यहाँ यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है और आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, यहाँ पे पढ़ो। ठीक है। गेस वर्क एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बताऊं, तो मैं बोलूं कि मैं जब एमडी कर रहा था, तभी मेरे पास जितने भी इंडोमेथाजिन जो टेबलेट आती है, कैप्सूल आती है, जॉइंट पेन के अंदर कई बार एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, तो जिन जिलों को मैंने स्ट्रेमोनियम मेडिसिन दिया, तो उसको इंडोमेथाजिन की हैबिट छूट गई और उसकी कंप्लेंट में आराम हो गया, मैंने बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, कई बार स्टूडेंट या फिर प्रैक्टिस में रहा, डॉक्टर प्रणव शाह ने उसके वेबिनार में बोला था कि इंडोमेथाजिन जिन जिन लोगों ने लिया हुआ है उसको मैंने स्ट्रेमोनियम दिया था तो अच्छा हो गया। वो गेस वर्क हो, वो डॉक्टर प्रणव शाह को ही पता है किस बेस पे लिया हुआ है, उसके अंदर आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने पोटेंसी नहीं बोली है, रिपीटेशन नहीं बोला। ठीक है, तो ये खास ध्यान, इथिकली ध्यान रखना है। व्हेन द पेशेंट डिमांड क्विक रिलीफ, ठीक है, पेशेंट आता है, सर आपने लास्ट टाइम मेडिसिन दिया बहुत अच्छा हो गया, और ऐसी कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली मेडिसिन दे दिया तो मुझे बहुत जल्दी आराम मिले, नहीं, गिव मी समथिंग स्ट्रॉन्ग और इमीडिएट रिलीफ रेमेडी। इथिक्स प्रायोरिटाइज सेफ्टी ओवर द प्लीजिंग द पेशेंट। उसमें अंदर क्या करते हैं, पेशेंट ने बोल दिया, हमने मेडिसिन भी चेंज कर दिया, पोटेंसी भी चेंज कर दिया और रिपीटेशन भी चेंज कर दिया, तो पेशेंट है वो केओस होके वापिस वो डिटोरिएट हो सकता है, हमको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल सकता है। इसलिए प्लीजिंग द पेशेंट, उसके ऊपर कभी हमको ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्यों नहीं दे रहे, वो सब आपको रीजन बताना पड़ेगा। कि जैसे पेशेंट को नहीं लगे कि नहीं, हाँ तो फिर अच्छा हो जाएगा, तो मुझे जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हैंडलिंग द केसेस बियॉन्ड ओवर एक्सपर्टाइज, एमआई, स्ट्रोक, सीवियर डिहाइड्रेशन। ठीक है, पेशेंट का डायबिटीज रहता है मिनिमम 200-400 के आसपास रहता है, और पेशेंट को बोल दिया कि नहीं मेरी तो एक्सपर्टाइज है इसके अंदर, मैं आपको 2 दिन के अंदर वो नॉर्मल ला के दूंगा। ठीक है, तो पहले पेशेंट को बोलना पड़ेगा सही है या गलत, हमको सुनना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा। इथिकल होम्योपैथिक रिस्पेक्ट मेडिकल बाउंड्रीज, वहां पे मेरी बाउंड्रीज है क्या? आपने बोल दिया कि नहीं वो आप डायबिटीज की दवाई मत लो, मेरी होम्योपैथ नहीं, अगर ये वहां पे मेरी बाउंड्री है तो उसको बोलना है कि नहीं हम आपको धीरे धीरे मेडिसिन स्टॉप कराएंगे,
आपका जैसे जैसे रिपोर्ट आते जाएंगे अच्छे अच्छे, वैसे ही आपके फिजिशियन ही आपकी मेडिसिन कम करेंगे, या फिर हम आपके फिजिशियन से बात करेंगे, उसके बाद हम आपको डायरेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर रिवर्स लेके आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एमआई का पेशेंट आया है तो नहीं बोल सकते कि नहीं चलो होम्योपैथिक, नहीं हो सकता है। अगर आपकी एक्सपर्टाइज है तो कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, लेकिन आपको भी साइंटिफिक देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वो आप ज्यादा एक्सपर्टाइज एक्सपर्टाइज करके वो पेशेंट को खो दो। उसके बाद इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम द ट्रीटमेंट, आगे बात हो गई। ट्रांसपेरेंसी इज एसेंशियलिटी। व्हेन द पेशेंट आस्क टू स्टॉप मॉडर्न मेडिसिन, वापिस उसके आगे का इथिकल प्रैक्टिस प्रिवेंट हार्म। ठीक है, वो ध्यान रखा। इथिकल यूज ऑफ रिसर्च एंड एविडेंस, you want to apply a new method or remedy based on a journal or article. Ethic ensure the safe scientific progress. अगर कोई मेथड आप यूज कर रहे हो, कोई मेडिसिन यूज कर रहे हो, अगर कोई नई मेडिसिन आई है तो उसके बारे में आप पहले पढ़ो। ठीक है, चॉकलेट नाम की मेडिसिन है, मोबाइल नाम की मेडिसिन है। ठीक है, मोरपंख मीन्स जो पीकॉक है उसके फीदर में से जो मेडिसिन बनती है, उसके बारे में आप पढ़ो, उसके केसेस देखो, उसके साइंटिफिक देखो, मटेरिया मेडिका पढ़ो, प्रूविंग पढ़ो, उसके बाद ही उसको हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, किसी ने बोल दिया नहीं, कर सकते हो, लेकिन उसका रिसर्च आपके पास होना चाहिए। चार्जिंग द फीस एंड सेलिंग द मेडिसिन, यस, ये सबसे। अ पेशेंट सस्पेक्ट ओवर चार्जिंग और अननेसेसरी मेडिसिन, प्रोफेशनलिज्म प्रोटेक्ट पेशेंट ट्रस्ट। कई बार होता है, पेशेंट बोलते हैं सर ये एक डब्बी के अंदर मेरी सब मेरी मेडिसिन में मैं अच्छा हो जाऊंगा क्या? हाँ, हो सकते हो। कई बार ऐसा लगता है सर और दो तीन मेडिसिन अलग अलग के दे दो ना, एक सिर दर्द की दे दो, एक पेट दर्द की दे दो, एक लेग पेन की दे दो। ठीक है, बहुत सारे फिजिशियन करते भी है और उसके हिसाब से चार्जेस लेते हैं। नहीं, लेना है चार्जेस, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। Ethical communication and counseling. Patient become emotional anxious about disease. Empathy is an ethical responsibility. ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है कि पेशेंट को कौन सी डिजीज इमोशनली उसको जरूरत है, तो उसको काउंसलिंग करना है तो काउंसलिंग करो। अगर कोई और चीज की सपोर्ट चाहे तो हम किसी और की भी सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है use of the patient data and photographs or testimony you want to use before or after picture for the social media. Ethical protect पेशेंट प्राइवेसी एंड लीगल सेफ्टी, इसलिए यहाँ पे कंसेंट फॉर्म ले लिया है हमने। तो नाउ एथिकल डिसीजन मेकिंग इन होम्योपैथिक मींस choosing the action that protect the patient safety, respect the legal boundary, and follow the classical principles and the maintain the honesty in every single day. ये सभी चीजें हम जब पहले दिन या फिर हम स्टूडेंट है, अगर हम अभी भी घर में मेडिसिन देते, तो ये सभी चीजें अभी से लागू करनी है। जो प्रैक्टिशनर है, जो टीचर है, उनको तो ज्यादा कुछ बोलना ही, ये सभी चीजें उनको पता ही है। ठीक है, अगर नहीं हम कर रहे हैं तो हमको इसके अंदर ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन स्ट्रेंथनिंग द एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी, रिसर्च की बात हो गई मेरी। क्यों रिसर्च करना है, कैसे करना है, कहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्ड द साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी एंड सपोर्ट होम्योपैथी विद मेजरेबल एविडेंस। यहाँ पे यूज किया है मेजरेबल एविडेंट, मेजरेबल विथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, बहुत रिसर्च होना चाहिए। आप 10 केस पब्लिश कर रहे हो तो 10 केस के मेजरेबल एविडेंस होने चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, राइट साइड किडनी स्टोन में इतने पेशेंट मैंने निकाल दिए, इतने एमएम के निकल, कहाँ पे फंसा था, अपर कलेक्स, मिडल कलेक्स, लोअर कलेक्स के अंदर या फिर नली के अंदर था, वो बेस होना चाहिए। वैलिडेट द क्लासिकल प्रिंसिपल लाइक इंडिविजुअलाइजेशन, क्लासिकल प्रिंसिपल्स लाइक इंडिविजुअल मिनिमम डोज एंड डायरेक्शन ऑफ क्योर। हमें जो कार्डिनल प्रिंसिपल है वो भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए रिसर्च के अंदर। इम्प्रूव द क्लिनिकल प्रैक्टिस बाय द गाइडिंग सेफर एक्यूरेट एविजन ब्रेन प्रिस्क्रिप्शन।
अगर हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर हमारे ये देखा है, ये बोला हुआ है, तो हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वो कोई पढ़े तो उसकी अपनी क्लिनिक भी इम्प्रूव होनी चाहिए, उसके पास वो डिजीज के पेशेंट बढ़ने चाहिए। प्रमोट द क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट एंड एनहांस एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैंने पब्लिश किया तो वहां से भी क्रिटिकल थिंकिंग आना चाहिए। एग्जाम्पल के हिसाब से सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई रस्टॉक्स और एपीस एक दूसरे की इनिमिकल है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट आके बोलता है कि सर मैं आप तो बोल रहे थे रस्टॉक्स और एपीस दोनों इनिमिकल है, लेकिन मैंने पहले रस्टॉक्स दिया था, उसके बाद पेशेंट वापिस आया लेकिन प्योर पिक्चर मुझे एपिस का मिला था, तो मैंने एपिस दे दिया, लेकिन उसको रिजल्ट तो बहुत बढ़िया हो गया। सही बात है, ये क्रिटिकल थिंकिंग हो गया कि भाई बुक में ऐसा लिखा है लेकिन स्टूडेंट तो रिजल्ट लेके आ गया, तो हमको क्या करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए और ऐसे आसपास के भी जितने भी फिजिशियन के पास ऐसे केस है उसको इकट्ठा करना चाहिए और बताना चाहिए, पब्लिश करना चाहिए कि नहीं ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथन द पेशेंट ट्रस्ट टू द ट्रांसपेरेंट एंड रिसर्च बैक आउटकम। मैंने पहले बताया, अगर पेशेंट बोलता है आके कि सर आपने ऐसे केस कभी क्या किया है, क्योर किया हुआ है क्या, रिकवर किया हुआ है, हाँ किया हुआ है, तो आपके पास उसके रिसर्च पेपर और आपका एक्सपीरियंस बताना है। सपोर्ट पॉलिसी गाइडलाइन एंड इंटीग्रेशन इनटू हेल्थ केयर सिस्टम एनसीएस एंड सीसीआरएच, बहुत सारी यहाँ पे मैंने दो रेगुलर यूज होता है वो यूज किया हुआ है। Ensure the quality control of homeopathic medicine through the scientific testing। ठीक है, कई बार हम तो क्वेश्चन आता है कि भाई शुगर ऑफ मिल्क सही या गलत है, हमारी मेडिसिन के अंदर स्टार्च का बाउंडिंग एजेंट कितना है, तो हम यूज कर सकते हैं हमारे हिसाब से डायरेक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट द रिसर्च इन स्ट्रेंथ द एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी। अगर हमारी रिसर्च ज्यादा अच्छे है तो आप अच्छी तरह उसको क्या पब्लिश करो, एनसीएच सीसीएच के अंदर हम डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द इथिकल एंड अनइथिकल रिसर्च प्रैक्टिस। इथिकल प्रैक्टिस किसको बोलेंगे और अन रिसर्च कैसे बोलेंगे, तो क्या फॉलो द एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइन और आईसीएमआर आईसीएच अप्रूवल। ठीक है, जो अप्रूवल लेना चाहे इथिकल कमिटी का वो लेना है, हमको कंपलसरी लेना है। इग्नोर और बाईपास इथिकल गाइडेंस और कमिटीज इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो अनइथिकल प्रैक्टिस का हुआ। इथिकल हमको कंपलसरी करना है। ऑब्टेन द इन्फॉर्म द कंसेंट फ्रॉम द ऑल द पार्टिसिपेंट। रिसर्च के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट है वो सभी के क्या किया है, हम लोगों ने कंसेंट फॉर्म लिया है। अगर एक भी पेशेंट या फिर प्रूविंग के अंदर कंसेंट फॉर्म नहीं दिया है या फिर दिया है उसने विड्रॉ कर लिया, तो वो केस हमको अंदर नहीं लेना है। एंश्योर द वॉलेंटरी पार्टिसिपेंट अलाउ टू विड्रॉल एनी टाइम। वॉलेंटरी, फोर्स नहीं करना है, प्रेशर नहीं करना है, मैनिपुलेट नहीं करना है। प्रोटेक्ट द प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट डेटा। हम वहां पे कोडिंग कर देते हैं कि जिसको पता नहीं चले, वो खाली 2 या 3 लोगों को पता है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अगर जिसने कोडिंग किया है वही लीक कर देगा और शेयर कर देगा किसी और, तो को उसका अनइथिकल रिसर्च हो गया। कंडक्ट द रिसर्च विद साइंटिफिक इंटीग्रिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी। एक भी चीज आपको हाइड नहीं, आपने जो लिया है वो सब लिख डालो अंदर। रिसर्च के अंदर ऐसा नहीं है कि हर बार आपका रिसर्च पॉजिटिव ही आना चाहिए, कई बार नेगेटिव भी आता है। रिसर्च किया है तो पॉजिटिव भी। ऐसा होता है कि क्रिकेट में दोनों टीम हर बार जीती जाती है, एक जीतती है एक हार जाती है। बहुत कम बार ऐसा होता है जिसमें टाई आई हो। ठीक है, तो रिसर्च हर बार जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव है, या फिर हर बार ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव भी कई बार आ सकता है। ऐसा हो तो हमने स्मॉल सैंपल साइज लिया तो वो नेगेटिव आता है, लेकिन बड़ा सैंपल साइज लिया तो वही चीज पॉजिटिव में भी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, तो देखिए प्लेगरिज्म है, कॉपी पेस्ट कहीं से भी किया है तो वो लिखो कि नहीं मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया हुआ है,
यहाँ पे मैंने नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टिंग्विश बिटवीन इथिकल एंड अनइथिकल रिसर्च। Culture of professionalism integrated in scientific thinking, promoting the strong ethical environment in research. Healthcare require the more than the rules. It demands the culture where the professionalism, honesty and scientific curiosity. तो 3 चीज हमारी लाइफ में होनी चाहिए जब होम्योपैथ है या फिर होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे, होम्योपैथिक स्टूडेंट है या फिर रिसर्च कर रहे हैं या फिर लीगल है या इलीगल है। तो Professionalism, it behave the responsibly, respectfully, and competency at every stage of the research and clinical work. Ethical guideline को हमको follow करना है. Respect the participant, colleague in scientific process, commitment to the high quality work, accuracy and sincerity, timely communication, proper documentation and accountability, maintain the confidentiality and respecting the dignity of the participant, even dignity of physician also. ठीक है, continuous self improvement through the learning and skill development. हमारा खुद का भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हमको थोड़े थोड़े टाइम के अंदर कहीं पे भी होम्योपैथी का रिसर्च वर्क है या फिर कहीं पे भी उसका सेमिनार है या फिर उसका मीटिंग हो रही है, तो वहां पे हमको जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, बाहर क्या चल रहा है वो हमको पता होना चाहिए। Integrity, meaningful scientific work, honesty in the data collection, analysis and reporting, avoid the fabrication, falsification and plagiarism, acknowledging the limitation, error, conflict of interest and transparency, given a proper credit to contributor or co-authors and sources. वो ध्यान रखना है आपको, किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है आपके रिसर्च के, उसका आपको आभारी होना है। ठीक है, consistency between the words and action, doing what you claim to do को खास ध्यान रखना है। Even integrity become a habit, research outcome become reliable and reproducible and beneficial to society. रिलायबल भी होना चाहिए, रिप्रोड्यूसल भी होना चाहिए एंड बेनिफिट टू सोसाइटी भी होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रिटी के बाद साइंटिफिक thinking, asking meaningful questions, seeking evidence-based answers, using systematic methodology and critical responsibility and reasoning, remaining open to new information and accepting the result even if they contradict expectations, avoid the bias, superstitious and unsupported assumptions, promoting the observation, experimentation and objective analysis. आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? हर बार सभी मेडिसिन का ऑब्जर्वेशन अलग अलग होगा। सभी मेडिसिन सभी मायाजम में, सभी मेडिसिन सभी डिजीज में दे सकते हैं। ठीक है, वो क्या ऑब्जर्वेशन भी हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन भी हो गया एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस भी हो गया। लर्निंग फ्रॉम द फेलियर, रिफाइनिंग हाइपोथेसिस एंड इम्प्रूव द स्टडी डिजाइन। ठीक है, मैंने बोला कि वो स्मॉल साइज का आपने रिसर्च किया है तो उसमें आप फेल भी जा सकते हो, लेकिन यही चीज आपने क्या किया, लार्ज में किया तो क्या हो गया, आप पे पॉजिटिव रिसर्च आया। इसलिए ऐसा नहीं है कि छोटा रिसर्च है वो हमेशा फेल ही होगा और बड़ा रिसर्च है हमेशा सही होगा। ऐसा भी हो सकता है बड़ा रिसर्च आगे जाके फेल भी हो सकता है और छोटा रिसर्च पॉजिटिव भी आ सकता है, वाइस वर्सा है। ठीक है, तो साइंटिफिक थिंकिंग हमको करना है। हाउ टू बिल्ड दिस कल्चर, इथिकल वर्कशॉप, जर्नल क्लब्स एंड मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, कैसे बिल्ड कर सकते हैं आप? पार्टिसिपेट करो बहुत सारी जगह पे जहां जहां पे ऐसी चीज हो रही है। मेंटरशिप प्रोग्राम अभी सीबीडीसी के अंदर आ ही गया है। आपके कोई मेंटर, जैसे मेरे को कोई दिक्कत है तो मैं मेरे कलीग्स को पूछ लेता हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल को फोन करके पूरा, मेरे सर को पूछ लेता हूँ, वो कहीं पे भी हो। एस्टेब्लिश क्लियर पॉलिसी ऑन प्लेगरिज्म, ऑथरशिप एंड डेटा मैनेजमेंट, वो ध्यान रखना है। कोई भी चीज
encourage the peer review, teamwork and collaborative learning. अगर आपने peer review कर लिया, टीम वर्क कर लिया और कोलैबोरेटिव लर्निंग कर लिया तो आप 100% आगे ही जाओगे। ठीक है। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड एथिकल बिहेवियर एंड हाई क्वालिटी रिसर्च प्रैक्टिस। रिकॉग्नाइज, आपके साथ साथ जो भी लोग है उसको रिकॉग्नाइज करो, रिवॉर्ड उसको दो, उसके साथ एथिकल बिहेवियर भी आपके अंदर आएगा। Ensure the institutional support, resource and a non-threatening reporting system of the ethical violation. जैसे मुझे अभी आयशा ने बोला है कि नहीं आप कोई भी एक अच्छा सा टॉपिक ले लो, जैसे फ्यूचर सभी का अच्छा हो, तो ठीक है, अच्छा है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। यहाँ पे मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया, इंस्टीट्यूशनल वालों ने सपोर्ट किया, नहीं आप ले सकते हो शाम को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होम्योपैथिक का ही पार्ट है। ठीक है, तो घर बैठे भी आप होम्योपैथिक का वर्क कर सकते हो, ऐसा जरूर नहीं कि मैं कॉलेज में रहा तभी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो भी नॉलेज था, मेरे पास जो भी पढ़ा हुआ था, वो चीज मैंने आज यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी हो गया। ठीक है, एनसीएच की वेबसाइट को भी मैं आभार मानूंगा, क्योंकि वहां से भी बहुत सारी चीजें मैंने लिया हुआ है। तो चलो, एनसीएच क्या क्या बोल रहा है। सॉरी, मेंटेन द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द प्रोफेशन, provide the unbiased and evidence information care, maintain the confidentiality and the patient information, avoid the exaggerated claim and misleading advertisement. मैं ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सके डायबिटीज के ये मेरी मेडिसिन है, वो डायबिटीज हमेशा खत्म कर देगा। ठीक है, क्योंकि हमारी मेडिसिन कभी एक अकेली डायबिटीज के लिए बनी नहीं है। जो डायबिटीज के लिए मेडिसिन हमने दी है, वो मेडिसिन हम किस पे दे सकते हैं, कैंसर में भी दे सकते हैं। ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करना। Responsibility: obtain consent from report the treatment, maintain the accurate record, case history, prescription and follow-up. Use the rational individualized prescription, rational and individualized prescription ही होना चाहिए. Ensure the safe quality source of medicine. ठीक है, हमारा अभी गवर्नमेंट का रूल्स कि हम जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसका फुल नेम ही लिखना है, वो भी कैपिटल में ही हमको करना है, वो हमको ध्यान रखना है। Register practitioner only to practice. Display registration certificate prominently. Use only NCH recognized homeopathic medicine. Maintain the clinical hygiene and safe dispensing practice. NCH regulation research conduct. Follow the ethical research principle. Avoid the fabrication, manipulation, and falsification of the data. Obtain institutional ethical committee approval. Ensure the voluntary participation and confidentiality. Ethical case taking together, respect, the empathy, and non-judgment. Truthful, clear communication. Patient-centric approach and avoid the concretion of the forceful questioning. ठीक है, ऐसे ही हम लोग केस टेकिंग के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम करते हैं, कई बार करना पड़ता है तब कर ही लेते हैं। रिकॉर्ड के बीच मेंटेन द ओपीडी एंड आईपीडी रिकॉर्ड, जैसे मैंने बोला कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना ही है। ठीक है, इसके अंदर 3 to 5 ईयर और कहीं जगह पे 5 to 10 ईयर भी हमको रिसर्च पेपर या फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड का आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो उसके लिए उसके नॉर्म्स भी है, आप उसको न्यूज़पेपर में दो, मैं ये इतने से इतने तारीख के रिपोर्ट, इतने से इतने ईयर के रिकॉर्ड डिस्कार्ड कर रहा हूँ, अगर किसी को अपना रिकॉर्ड चाहिए तो मेरे पास से ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आप डिस्कार्ड रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसके लिए भी नॉर्म्स एंड रेगुलेशन है, वो आपको फॉलो करना है। Avoid the polypharmacy and unethical combination. No selling of medicine for profit. Transparency in formulation and potency. यहाँ पे formulation and potency इसलिए लिखा है कि एनसीए सॉरी अगर गाजियाबाद की जो लेबोरेटरी है, मेरा रिसर्च क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। उन लोगों ने बोला हुआ है कि अगर आप कोई भी फॉर्मूला बनाते हो, ठीक है, फार्माकोपिया कमेटी वालों ने बोला हुआ है कि अगर कोई भी आप फॉर्मूला बनाए तो वो ज्यादा 6 और 3C से ज्यादा की पोटेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो लिखा हुआ है।
तो फिर भी फॉर्मूला में कई बार क्या होता है 231 फॉर्मूला के अंदर मिल जाती है, तो वो ध्यान रखना है। साइंटिफिक जस्टिफिकेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, रिसर्च इन होम्योपैथी, व्हाई द इम्पोर्टेंस, स्ट्रेंथनिंग द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, उसके बाद ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द होम्योपैथी, वो भी कर चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग द ड्रग एक्शन, क्लिनिकल आउटकम एंड बिल्ड द ट्रस्ट अमंग द पेशेंट एंड सोसाइटी। क्लिनिकल ट्रायल, केस स्टडी एंड केस सीरीज, सर्वे एंड क्वेश्चनरी एंड ड्रग प्रूविंग, हैनीमैन मेथड। ठीक है, इसके बहुत सारे लेक्चर होते हैं, अगर कभी टाइम मिला तो इसके बारे में हम बात कर लेंगे, या फिर और पहले आप आयशा के रिकॉर्ड में देख सकते हो, अगर किसी ने इसके ऊपर लेक्चर लिया है तो वो आप देख सकते हो। इथिकल रिसर्च प्रैक्टिस, रिस्पेक्ट ऑफ पार्टिसिपेंट, साइंटिफिक इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी इन मेथोडोलॉजी एंड ऑनेस्ट रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट। जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो सब पूरा लीगल ही हमको लिखना है, उसके अंदर कोई भी चीज मैनिपुलेट नहीं चाहिए। कॉमन इथिकल वायोलेशंस, ओवर क्लेम क्योर एंड गारंटेड रिजल्ट, 100% हमारी भी गारंटी नहीं है तो डिसीज की भी गारंटी हम नहीं दे सकते। मिस यूज ऑफ पेशेंट फोटोग्राफ एंड डेटा, कई बार क्या होता है कि किसी को पता ना चले, जैसे पेशेंट के फोटोग्राफ इधर उधर करके हम मेरे नाम से पब्लिश कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, मिस यूज है। ठीक है, फैब्रिकेटेड द रिसर्च डेटा एंड मिसलीडिंग द एडवर्टाइजमेंट। Legal boundary, no cross-pathy or the practicing the modern medicine illegally, avoid unethical collaboration, follow the Homeopathic Central Council Act rules and compile with the आयुष मिनिस्ट्री गाइडलाइन। उसकी जितनी भी गाइडलाइन है थी उसको हमको क्या करना है, फॉलो करना है। पब्लिक अवेयरनेस, प्रोवाइड ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन, अवॉइड द फियर बेस्ड मार्केटिंग। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको ये हो जाए, इसलिए आपको ये मेडिसिन लेना ही है, तो आपको ये डिजीज नहीं होगा। फियरफुल, घबराना नहीं है पेशेंट। ठीक है, promote the scientific understanding of the homeopathy. Conclusion of the my topic is the ethical practice build the trust, research strengthen the professions, and practitioners, students, and faculty share the responsibility. Do right, do better in every day is the end of the topic. How to do right today so they can do better tomorrow as a futures homeopathic. ठीक, अगर किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो मुझे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हेलो। Thank, thank you, sir. Thank you so much for the wonderful session. You have in detailedly explained regarding the ethics as well as the rules to be followed, as well as the physicians and as well as the patients too. And respected participants, any doubts, kindly comment in the comment box. Sir will be answering. Yeah. I hope they were clear with the topic, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. वन क्वेश्चन ना सर, अगर हम लोग एथिक्स क्या होगा जब अगर हम लोग इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम अगर हम कोलैबोरेट कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो रिसर्च के ऊपर। हाँ, तो उसके अंदर ऐसा होता है सर कि हम लोगों को जो पेटी के साथ हम लोग कोलैबोरेशन करेंगे उसके रूल्स और रेगुलेशन और हमारे रूल्स और रेगुलेशन दोनों को हमको फॉलो करना है, उसके बाद ही हम इंटीग्रेटेड कर सकते हैं सर। सर ये क्या अप्रूवल होगा अगर हम लोग अगर कोशिश करेंगे तो कोई रिसर्च प्रोजेक्ट, हम पायलट प्रोजेक्ट लगाए हम लोग, तो उसका अप्रूवल कैसे मिलेगा? जैसे हम लोग नहीं हो होम्योपैथी सकता जो है, होगा अगर नहीं सर, होता है बहुत सारी जगह पे ऐसा हो चुका है कि आईसीएमआर है, वहां पे हाँ, इंडियन काउंसिल, होम्योपैथिक बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन और हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू ही हुए हैं। क्योंकि ठीक है, लेकिन आपको खाली आईसीएमआर छोटा छोटा फंड क्रिएट करता है, छोटा सा फंड देता है प्रोजेक्ट रिसर्च के लिए। दे सकते हैं ना, आपको वो प्रेजेंट करना पड़ेगा सर,
उनके इथिकल गाइडलाइन के अंदर आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ये चीज है तो आपको मुझे ये चीज करनी है, तो वो लोग आप 100% फंडिंग देते हैं सर। सर एक एक प्रोजेक्ट बना दीजिए ना हम लोग को, एक थोड़ा सा कुछ प्रोजेक्ट इंटर सिस्टम में, जैसे हम लोग आईसीआर को प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यस सर, हम लोग पहले उनके पास से कहा कब आ रहा है उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बनाएंगे। सर मिनिस्टर आयुष ने वो बहुत सारे स्कीम दिया है, फंडिंग कर रहा है मिनिस्टर आयुष। उसमें बहुत सारे स्कीम है आपका रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर। मैंने भेजा है मुझे, मैंने टीमाशा को भेजा था, टीमाशा मुझे भेजा है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, कोप पीआई करके पोस्ट क्रिएट किया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, बहुत सारे प्रोजेक्ट करके हमको भेजा है, मैं आपको भेज दूंगा सर। तो थोड़ा हमको इसके हेल्प देखते हैं। करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं करेंगे ना, क्यों नहीं, अगर सब साथ में है तो हम करेंगे ही, कोई दिक्कत सर नहीं। आप तो आया था ना हमारा वो कंपनी वाला बिल्डिंग में, दिखे ना सर, हाँ। कलकत्ता टनम में। तो हम्म। सर हम लोग उसमें जब हम लोग उसमें काम कर रहा था, तब मैंने देखा जो मिनिस्टर में बहुत सारी स्कीम है, जो हमें हम लोग आयुर्वेद की जैसे प्रोडक्ट का है, ऊपर ऊपर होम्योपैथी का भी बहुत सारी स्कीम है सर। मैं सोचता हूँ सर कर आपको सकते भेज हैं दूंगा ना। सर। हाँ सर। ठीक है, करते हैं। ओके, थैंक यू करते सो हैं मच, थैंक स्टार्ट। यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। ओके, ओवर टू ओके। लावण्य मैम। Ji sir, thank you so much for the clarification also, and thank you so much for the overwhelming session, sir. Thank you all the participants for the थैंक यू। participation. Looking forward for many more sessions, sir, to you too, and we'll be थैंक यू glad to आयशा, have the थैंक यू। many more sessions from you also. ओके, थैंक यू। And thank you all. Thank you so much. So we'll be coming back to the one more session from by tomorrow. By tomorrow. So thank you all. Thank you so much. Thank you, sir. थैंक यू। गुड नाइट सर, थैंक यू गुड मैम। नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट मैम, गुड गुड नाइट नाइट, सर। गुड नाइट, गुड डे।